Welcome back, dear students. By now, we tried to understand how international human rights treaties or conventions work at the international level and transnationally between the Committee of Nations by the help of intergovernmental bodies or organizations or NGOs, etc., and the primary legislations or instruments internationally which are in either in the form of declarations or treaties or conventions or covenants under the aegis of the United Nations. In this lecture, we will try to understand yet another notion of human rights, treaties or mechanisms, which is regionally based or localized. These instruments or arrangements are known as regional human rights treaties or arrangements. They are specifically localized and in a way penumbral treaties or instruments based on geographical exigencies and certain factors binding the member states together, for example, geography or their culture or their territorial integrity, etc., or shared values. So, on the basis of region, there are three primary conventions or mechanisms. One is European, another is American, and another is African. Before we go into those discussions of each treaty or convention mechanism, I'll try to let's try to understand how regionally or geographically these human rights treaties have been incorporated and acceded to by member states. If we try to understand the distribution or spatial evenness of the nations um, across the globe, you'll find the major region is Europe और यूरोप में यूरोपियन कन्वेंशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, उस पर आएंगे अभी तफसील से. अमेरिकन नेशंस एक अलग आइडेंटिटी है जिनमें अमेरिका के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स बाय अमेरिकन नेशंस वी यूजुअली गेट कंफ्यूज्ड कि यूएसए है सिर्फ उसमें प्राइमरीली यूएसए है एंड जब आप मैकेनिज्म देखेंगे ह्यूमन राइट्स का तो आपको लगेगा कि इट इज़ एनीथिंग बट यूएसए, क्योंकि उसमें जितने अभी मोस्ट मैकेनिज्म्स हैं अमेरिकन नाम से उसमें यूएसए पार्टी ही नहीं है एज इट डज टू द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कमिटमेंट्स, जैसे ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन विद रिलेशन टू चिल्ड्रन है, विद रिलेशन टू टॉर्चर है, एट्सेट्रा है, उसमें यूएसए पार्टी नहीं है. सिमिलरली अमेरिकन मैकेनिज्म में आप देखेंगे यूएसए के अलावा अक्सर जो अमेरिकन नेशन है जिन्हें अमेरिकाज कहते हैं, जिन्हें वो लाइक वेस्ट इंडीज़ जो कहलाते हैं, वेस्ट लेटिन अमेरिकन वेस्ट इंडियन नेशंस, वो आते हैं. और अब जियोग्राफिकली फिर अफ्रीकन नेशंस एक अलग रियलिटी है जिसमें अफ्रीका के ममालिक हैं और दोज कंट्रीज़. इसके अलावा अगर हम एशियन में आएंगे, एशियन रीजन्स में, तो देयर इज़ नो मैकेनिज्म स्पेसिफिकली इन एशिया एक्सेप्ट दैट मुस्लिम मेंबर्स और मुस्लिम नेशंस में देयर वाज अ ट्रीटी जो अरब चार्टर था, अरब चार्टर और ह्यूमन राइट्स, and it was for the first time introduced in 1994. Ironically, it never entered into the force because no member state ratified this. And finally, in 2004, इसको redraft करके दोबारा reintroduce किया गया, and it came into force in 2008, and it has 53 articles when it was translated in English. And in 2014, there was this Arab Charter and Human Rights. Under this aegis was introduced the Statute of the Arab Code of Human Rights. There was Statute of Arab Code of Human Rights. इसमें जो मिडिल ईस्ट के अरबियन ममालिक हैं, अरबियन नेशंस हैं, वो मेंबर्स हैं अक्सर चार्टर के. आई थिंक 13 या 12 मेंबर्स हैं इसके. बट अभी तक स्टैचूट जो है अरब कोड का ह्यूमन राइट्स को लेकर के उसका कोई मेंबर नहीं है एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया. Only Saudi Arabia has ratified it, and so it will come into force once 7 members ratify it. So अभी तक तो ये फोर्स में
आया नहीं. So that is a specific regional arrangement. अपार्ट फ्रॉम दैट ओशियाना रीजन के कंट्रीज़ में कोई रीजनल अरेंजमेंट नहीं है. एशिया में स्पेसिफिकली जो नॉर्दर्न रीजन ऑफ एशिया है और साउथ ईस्टर्न रीजन है, साउथ वेस्टर्न है, इसमें कोई ट्रीटी नहीं है. सो प्राइमरीली देयर आर थ्री ऑफ देम. वन इज़ यूरोपियन, और दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट oldest rather and most robust mechanism. सबसे ज़्यादा regional conventions में बाज़ मरतबा sometimes you'll feel like कि जो internationally mechanism है in place in respect of human rights, उनसे भी ज़्यादा mechanism strong European Convention के अंदर है. तो European Convention में एक्चुअली यूरोपियन कन्वेंशन फॉर द, इसका पूरा नाम है यूरोपियन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स. तो यूरोपियन कन्वेंशन है, वी हैव अ यूरोपियन कन्वेंशन, देयर इज अ कन्वेंशन रादर, अ कन्वेंशन ऑफ 1950, and there is European Social Charter with respect to social, economic and cultural rights, वो 1961 का है. We'll come to that in detail. And Americas में, in Americas or American nations, there is American Convention on Human Rights. यहाँ भी convention है, और this is a convention of 1988 probably. 80 नहीं, ये कन्वेंशन प्रोटोकॉल 88 का है. इसका कन्वेंशन तो ये 1969 की है प्रोबेबली. यस, ये 69 की कन्वेंशन है. इट्स अ कन्वेंशन ऑफ 1969. एंड फिर एक प्रोटोकॉल भी है इसका 88 का. एंड देन लास्टली देयर इज अफ्रीका. तो अफ्रीकन रीजन्स में 1981 का चार्टर है, जिसे अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स है उसका नाम. और इसको एक्चुअली बांजुल डिक्लेरेशन भी कहते हैं. बांजुल क्योंकि गैम्बिया एक मुल्क है अफ्रीकन नेशंस में, तो बांजुल एक जगह है जहाँ ये इनफोर्स आया फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम. सो दैट इज ऑल्सो नोन एज बांजुल डिक्लेरेशन. वहाँ पे हम जाएंगे. वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम वन बाय वन. बट सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास जो कन्वेंशन और ट्रीटी मैकेनिज्म है जो रीजनल बेसिस पे है, दैट इज द यूरोपियन कन्वेंशन. इसका पूरा नाम इस तरह है, यूरोपियन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स. Human rights and fundamental freedom. This is actually the basic convention जो 1950 में मारिज़ वजूद आया. और इसके अलावा क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स में जनरली इसमें फर्स्ट जनरेशन राइट्स मिलते हैं, तो सेकंड जनरेशन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर एक यूरोपियन सोशल चार्टर भी आया, यूरोपियन सोशल चार्टर. और ये चार्टर स्पेसिफिकली इन सेकेंड जनरेशन राइट्स पे प्रोविजंस ले डाउन करता है. एंड इट इज़ अ चार्टर ऑफ 1961. और इसको 1996 में फिर रिवाइज भी किया गया, रिवाइज्ड इन 1996. बट डेट्स आर नॉट मटीरियल. द मेजर थिंग इज के यूरोपियन कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स है, या जिसे हम एक्रोनिम में शॉर्ट में यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहेंगे. अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं. एक्चुअली जब इन द अर्लीस्ट 20th सेंचुरी के मिडिल पार्ट में 1940 जब यूनाइटेड नेशंस बना वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, तो 46, 47, 48 में एक तरफ से इंटरनेशनल सिनेरियो में कमिटी ऑफ नेशंस और globally जो भी different nations थे, they were trying to regroup internationally on certain minimum standards of human rights. और फिर उसके नतीजे में कई सारे institutions और कई सारे conventions और treaty mechanisms established और incorporate हुए. Regionally भी इस तरह के organizations और shadow organizations बनते रहे. For example, यूरोप में पर्टिकुलरली हम इस वक्त यूरोप से कंसर्न्ड हैं, तो काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में बना.
Council of Europe. And this is quite different from European Union, and it's a larger body than European Union. इसको यूरोपियन यूनियन से अलग समझना है. यूरोपियन यूनियन नहीं है वो. यूरोपियन यूनियन एक अलग इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, और उसका इस ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म से जो हम समझ रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं. उनका अपना एक कोड भी है, बट मोर रोबस्ट मैकेनिज्म जो ह्यूमन राइट्स का हम समझ रहे हैं वो काउंसिल ऑफ यूरोप के अंडर है, जो 1949 में बना. इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और यूरोप में तो ओल्डेस्ट है ही. ये प्राइमरीली 1940 प्राइमरीली इसलिए इस्टेब्लिश की गई थी ताकि यूरोप के नेशंस में एक इंटीग्रेशन हो जाए. और वो कोल्ड वॉर एरा था चूंकि, तो एंटी कम्युनिस्ट सेंटिमेंट्स थे उन नेशंस में, यूरोप में, तो इसलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया. स्ट्रासबर्ग, जो टू नो व्हाट्स द करेक्ट स्पेलिंग, जो लेकिन जो स्ट्रासबर्ग है फ्रांस में, वहाँ इसकी सीट है, और वहीं पे यूरोपियन कोर्ट भी है ह्यूमन राइट्स का. तो दिस जब काउंसिल ने ही फिर यूरोपियन कन्वेंशन को लाने में प्राइमरी रोल अदा किया. काउंसिल ही के ज़रिए से, इसी के एफर्ट से यूरोपियन कन्वेंशन फॉर ह्यूमन राइट्स आया. और इस काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो सारे कन्वेंशन के सिग्नेटरीज भी हैं, रेटिफायर्स भी हैं. आई थिंक 47 प्लस मेंबर्स हैं इसके. और वो सारे जो भी काउंसिल के 47 मेंबर्स हैं वो यूरोपियन कन्वेंशन के मेंबर हैं. इसके बरक्स अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन छोटा, उसमें शायद 26 या 27 मेंबर्स हैं शायद यूरोपियन यूनियन में. तो ईयू अलग है, उसे नहीं यहाँ कंफ्यूज होना है. ये काउंसिल ऑफ यूरोप है. तो इसी ने कन्वेंशन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया. बैक टू नाउ कन्वेंशन, एंड लेट्स लुक एट द कन्वेंशन प्रोविजंस एंड राइट्स दैट इट डिलिनिएट्स. जो यूरोपियन कन्वेंशन है, it is actually a document, rather it is one of the, अगर pragmatically देखें, it contains preamble plus 59 के आसपास articles हैं, 59 articles spread over many chapters, जिसमें specifically एक chapter यूरोपियन कोड से रिलेटेड है, यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट मैकेनिज्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ एजुडिकेटरी बॉडीज. रादर ये ज़्यादा robust है, ज़्यादा strong है than in terms of its pragmatism and in terms of its activities, in contrast to other bodies like ICC और ICJ. उनसे भी ज़्यादा मजबूत है, because इसमें individual petitions जाती हैं जिन्हें complaints कहते हैं, और individual भी as a member, as a complainant सीधे जा सकता है after exhausting the local remedies. जिसे नॉन एग्जॉशन के लिए तो डिसमिस हो जाती है एप्लीकेशन, वरना इंडिविजुअल या एनजीओ या इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट जा सकता है यूरोपियन कोर्ट. हम उस तरफ आएंगे अभी. बट प्रियम्बल के इन आर्टिकल प्रोविजंस में अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत सारे राइट्स, जो जनरली हम ह्यूमन राइट्स के जो बात कर रहे हैं वही सारे राइट्स दिए हुए हैं. प्रोविजन नंबर मटेरियल है, बट उसी तरह के राइट्स, खास बात कोई नहीं है राइट्स को डिलिनेट करने में. वही राइट टू लाइफ है, इसी तरह फ्रीडम अगेंस्ट टॉर्चर है, और प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्विट्यूड है, और राइट टू लिबर्टी, सिक्योरिटी और फेयर ट्रायल एट्सेट्रा, और एसोसिएशन का है, मैरिज का राइट है. ये कई सारे राइट्स प्रियम्बल आर्टिकल के बॉडीज में मिलेंगे आपको. इसके near about 16 protocols हैं probably. If I'm correct factually, you kindly verify it at your own place. It has more than 14 तो थे for sure, 16 ही हैं शायद. 16 protocols के आसपास हैं इसके. जैसे इसका protocol 6 and 13 relates to death penalty. ये बहुत मशहूर इसके protocols हैं. Protocol 6 जब for the first time introduce हुआ, it in a way it was a protocol related to restriction on death penalty. तो for the first time इसने कुछ स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश कर दिए. तो यूरोप में स्टेज वाइज जो है यूरोपियन नेशंस ने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से डेथ पेनल्टी को निकाल दिया. तो पहले प्रोटोकॉल 6 आया, इट ब्रॉट सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन डेथ पेनल्टी. Then Protocol 13, which is entitled as Complete Abolition on Death Penalty, इसने complete abolition on death penalty, completely
डेथ पेनल्टी को ख़त्म ही कर दिया। बट देयर आर सर्टेन नेशंस जिन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ है प्रोटोकॉल 13 के यूरोपियन नेशंस में से, जिसमें से रशिया एक नेशन है। रशिया इज़ ऑलमोस्ट जैसे अक्रॉस द ग्लोब थर्ड वर्ल्ड नेशंस में कुछ पोरेस्ट नेशंस हैं who are found to be non-conformist with respect to the standards of human rights। यूरोप में भी ये कुछ नेशंस हैं, जैसे रशिया है, अजरबैजान है इटसेल्फ, और आर्मीनिया भी है। ये यही तीन हैं जो इस डेथ पेनल्टी को के प्रोटोकॉल के रेटिफाई नहीं किया हुआ है। तो लेट्स लुक एट द कोर्ट मैकेनिज्म, हाउ दिस कोर्ट वर्क्स। तो कन्वेंशन के अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशन देयर इज द कोर्ट, एंड कोर्ट ही कन्वेंशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। एंड दिस कोर्ट, यूरोपियन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स, ये ट्रांसनेशनली इससे ज़्यादा मजबूत कोर्ट कोई नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म में हो, चाहे रीजनल्स में हो। बिकॉज यू विल फाइंड जो इसको डिस्क्रिशन और मैंडेट दिया हुआ है मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन काउंसिल ने, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट है। एक्चुअली जो ये मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है, जो बॉडीज़, जो काउंसिल ऑफ यूरोप की कुछ बॉडीज़ हैं, उनमें एक बॉडी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो उसका टास्क ये है, वो जो कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको इन्फोर्स करवाना। तो उसके लिए जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, विच इज़ एक्चुअली द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन दिस काउंसिल ऑफ यूरोप, जिसे हम कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जानते हैं, कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स। और ये फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं हर यूरोपियन मेंबर स्टेट के, जितने भी 47 हैं, और हर मेंबर स्टेट से एक जज जाता है यूरोपियन कोर्ट में। तो उसमें लिमिटेशन नहीं है, जैसे और कोर्ट्स आपको दिखेंगे अफ्रीका का, अमेरिका का, कि 11 जज हैं, 6 जज हैं, 9 जज हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ से हर मेंबर स्टेट से एक जज जाता है, दो प्रैक्टिकली दे डोंट रिप्रेजेंट देयर स्टेट्स, ऐसा नहीं है। वहाँ जाकर के दे आर जस्ट इंडिविजुअल्स एंड मेंबर्स ऑफ दैट कोर्ट। तो कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स है जो इस कोर्ट के जजमेंट्स को इन्फोर्स कराती है। ऑल्दो कंप्लाइंस बहुत परसेंटेज, नियर अबाउट 60% ही है। बहुत सारे नेशंस हैं उनमें भी जो जजमेंट्स को इन्फोर्स नहीं करते हैं, बट स्टिल जो इसकी जजमेंट्स अब तक आई हुई हैं, बहुत सारी, अभी कुछ जजमेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सो यूरोपियन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स डिराइव्स इट्स मैंडेट ऑन आर्टिकल 19 एंड 20, रादर 19 ही है जिसमें पहली बार इसका जिक्र है। जो सेक्शन सेकंड है, सेक्शन 2 जो है कन्वेंशन का, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 51। ये पूरा डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव प्रोविजंस हैं जो कोर्ट को लेकर डील किए गए हैं, यूरोपियन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। और सीट इसकी वही है स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। और कंप्लेंट लेकर के कोई भी पर्सन जा सकता है। एंड दिस इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस यूरोपियन कोर्ट कि इंडिविजुअल्स और पर्सन्स कैन ब्रिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट द स्टेट्स, जो स्टेट्स वायलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को, जो कि यूरोपियन कन्वेंशन में है। जैसे कई सारी जजमेंट्स में, फॉर एग्जांपल वो एक जजमेंट थी उस्मान अबू कतादा की, उस्मान अबू कतादा वर्सेस यूनाइटेड किंगडम। ये 2012 की जजमेंट है, जिसमें उस्मान अबू कतादा वाज असॉल्ट बाय जॉर्डन फॉर डेपोटेशन, लेकिन he applied to the European Court for protection, and European Court held that deporting him is violation of Article 6, जो fair trial का provision है, Article 6 of the European Convention of Human Rights। और because अगर उसको deport करेंगे, they will extract, there is likelihood of extracting an admission of evidence by torturing, and this is violation of Article 6, जिसमें fair trial नहीं होता है फिर बाद में। इसी तरह एक बड़ी मशहूर जजमेंट थी ज़खारोव वर्सेस रशिया की, ज़खारोव वर्सेस रशिया। ये प्रोबेबली 2015 की जजमेंट है,
जिसमें कम्युनिकेशन सर्विलांस पे पाया गया कि दैट कम्युनिकेशन सर्विलांस, इट्स अ वेरी लॉन्ग जजमेंट एंड हिस्ट्री इसकी बहुत लंबी है, बिकॉज 2004 या 6 से ज़खारोव ने ये शुरू किया, रशिया ने एक लॉ बनाया हुआ था जिसमें कम्युनिकेशन सर्विलांस होता था टेलीकॉम कंपनीज के ज़रिए से, और उसने और लॉ भी अलाउ करता था कि, और लॉ में ये नहीं कहा गया था कि ऐसा सर्वेलेंस करने के लिए जुडिशियल अथॉरिटी चाहिए, पहले जुडिशरी से किसी जुडिशियल बॉडी से ऑथराइजेशन चाहिए। अब चूंकि उसने डोमेस्टिक रेमेडीज एग्जॉस्ट की और वहाँ के कोर्ट्स ने कहा यहाँ कोई लॉ नहीं है, देन ही रीच टू द यूरोपियन कोर्ट, और यूरोपियन कोर्ट ने, लोअर कोर्ट्स ने तो यही पाया था, बट यूरोपियन कोर्ट फाउंड इट्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 8 ऑफ द कन्वेंशन, जिसमें राइट टू प्राइवेसी है। और आयरॉनिकली जजमेंट आने के कुछ दिन बाद ही रशिया ने अपने डोमेस्टिक लॉ को अमेंड करके ये कह दिया कि नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल या कोर्ट की जजमेंट को डिसरिगार्ड किया जा सकता है। सो रिसेंटली इन जजमेंट ऑफ GL वर्सेस इटली, जस्ट अ फ्यू डेज अगो ये जजमेंट आई 2020 की, जिसमें एप्लीकेंट जो था GL, शी वॉज अ यंग गर्ल सफरिंग फ्रॉम नॉन वर्बल ऑटिज्म जिसे हम कहते हैं। तो शी वॉज एक्चुअली, उसको स्कूल ने, जो अपने इटली के स्कूल्स हैं, उन्होंने दे डिड नॉट प्रोवाइड हर स्पेशलिस्ट एजुकेशन सपोर्ट बिकॉज उसे एक डिसेबिलिटी थी। सो लॉ वहाँ का प्रोवाइड करता था दैट ऐसे लोगों को स्पेशलिस्ट एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए, ख़ास तरीके की या ख़ास तकनीक की पढ़ाई उनकी होनी चाहिए, बिकॉज शी वॉज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड और उसको नॉन वर्बल ऑटिज्म था। बट डिस्पाइट द लॉ बीइंग देयर उसको नहीं मिला, एंड देन शी रीच्ड टू द यूरोपियन कोर्ट एंड इट वाज इटली वाज फाउंड गिल्टी। और ऐसे मामले में डायरेक्शंस, सो इट्स अ काइंड ऑफ रोबस्ट कोर्ट जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इर्गा ओमनिस पे बेस्ड है, यानी जिसे हम इंटरनेशनल लॉ में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इर्गा ओमनिस, बाइंडिंग टुवर्ड्स द अदर स्टेट्स। तो जजमेंट्स इनके एनफोर्स इन कंपैरिजन टू अदर ह्यूमन राइट्स बॉडीज बहुत ज़्यादा होते हैं। देर आर 3 मैकेनिज्म्स जो कोर्ट्स फॉलो करती हैं यूरोपियन कोर्ट में। एक तो है कमेटी जजमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, जजेस जो बैठते हैं कमेटी जजमेंट्स में 3 जजेस बैठते हैं। फिर इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसे चेंबर्स जजमेंट कहते हैं, और चेंबर्स में 7 जजेस बैठते हैं। एंड देन जैसे लोग म्यूनिसिपल लॉ में हम फुल जज बेंच या सबसे बड़ी जज बेंच बैठी, तो दैट्स कॉल्ड एज ग्रैंड चैम्बर्स। ग्रैंड चैम्बर्स में 17 जजेस बैठते हैं। क्योंकि हर वक्त ऑड नंबर बैठेगा, सो एज क्योंकि माइनॉरिटी मेजॉरिटी जजमेंट डिसाइड करने के लिए ऑड नंबर बैठना ज़रूरी है, सो दैट इज़ वाई कि 3 बैठते हैं या 7 बैठते हैं या 17 बैठते हैं फुलेस्ट बेंच में। और हर जज की टर्म जो है 9 ईयर्स होती है, दूसरी टर्म मिलती नहीं है। तो हर जज 9 ईयर्स टर्म के लिए अपॉइंट होता है। और जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं ना, काउंसिल ऑफ यूरोप के 47 मेंबर स्टेट, वो सब स्टेट पार्टीज हैं इसके। कुछ ने एग्जिट किया हुआ, जैसे बेलारूस है। यूरोप में वो दे हैव नॉट एक्सीडेड इट। यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं जैसे बेलारूस है, और होली सी जिसे हम कहते हैं वेटिकन सिटी, वो पड़ता तो यूरोप में है, बट दे आर नॉट अ पार्टी टू दिस यूरोपियन कन्वेंशन। सो प्रैग्मेटिकली वी कैन से कि इससे ज़्यादा रोबस्ट मैकेनिज्म तो कोई नहीं है जो यूरोपियन कोर्ट है। इट सेट्स आउट स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। रादर प्रोटेक्शन क्या, हम इसको 3 स्टेजेस में समझ सकते हैं। एक तो ह्यूमन राइट्स के यूरोप में प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में तो जो फर्स्ट जनरेशन राइट्स आते हैं उनका प्रोटेक्शन है, तो उनके रिस्पेक्ट में प्रोटेक्शन होता है। फिर फर्स्ट जनरेशन राइट्स में ही जो इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, चिल्ड्रन राइट्स, एजुकेशन राइट्स हैं, इसी तरह प्रोटेक्शन फ्रॉम रेसिज्म है एट्सेट्रा, जो जिनमें ये निगेटिव राइट्स हैं, और ये पॉजिटिव राइट्स जो हैं उनमें प्रमोशन होगा। निगेटिव राइट्स में प्रोटेक्शन होगा, और ये प्रमोशन, सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ राइट्स, और थर्ड जो है वो दिस इज ऑल इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन राइट्स, क्योंकि निगेटिव राइट्स का प्रोटेक्शन होगा, और जो पॉजिटिव राइट्स होंगे या जो फर्स्ट जनरेशन में दोज राइट्स होंगे जो निगेटिव नहीं होंगे, उनका प्रमोशन होगा।
उसमें जेंडर इक्वालिटी का आता है, इसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि देयर इज एक्चुअली एक कन्वेंशन जो इसी साल फोर्स में आने वाली है यूरोप में दिसंबर में, एंड इट्स नोन एज द कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। जो जैसे रीजनल मैकेनिज्म में इंडिया में आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ट्रांसनेशनली वहाँ एक कन्वेंशन आने जा रही है और बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है मैकेनिज्म इंफॉर्मेशन के फ्लो का, कि जिसमें एक्सेस टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे कन्वेंशन कर रहे हैं मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। सो सेकंड स्टेज में है प्रमोशन। फिर रहे जो सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स है इटसेल्फ, जिनमें सोशल सिक्योरिटी के राइट्स आते हैं, या जिनमें इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स आते हैं, जिनमें इकोनॉमी इन्वॉल्व है और कल्चरल फेसेट्स भी होते हैं, जैसे कल्चरल इनक्वालिटी है। बहुत सारी चीज़ें कल्चर की वजह से स्पेसिफिक हो जाती हैं एंड दे नीड टू बी स्टैम्प्ड आउट थ्रू रेगुलेशंस, लॉज, सोशल प्रैक्टिसेस, जुडिशियल डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स एट्सेट्रा। तो वो थोड़ा वीकर होता है, इम्प्लीमेंट करना बिट डिफिकल्ट होता है इनके कंपैरिजन में, फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में। तो उसके लिए यूरोपियन सोशल चार्टर है, जो तो इसमें प्रोटेक्शन है, इनमें प्रमोशन है, और इसमें इंश्योरिंग है, इंश्योरिंग किन को करेंगे? सोशल राइट्स को, इसीलिए जिन्हें हम कहते हैं सेकंड जनरेशन राइट्स। इसीलिए इस रिस्पेक्ट में जो है यूरोपियन सोशल चार्टर है, और इट्स नॉट ओनली द चार्टर, यूरोपियन सोशल चार्टर के अंडर एक कमेटी भी है, यूरोपियन कमेटी ऑफ सोशल राइट्स, और ये एक इंडिपेंडेंट मेंबर्स, इसमें 15 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं जो रिपोर्टियर्स होते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। लेकिन चूंकि वीकर है इससे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन, बट इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, और इसमें 15 मेंबर बॉडी है जो 6 ईयर टर्म के लिए चलती है, और इसके अंदर एक कमेटी है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। वो कमेटी इसके मॉनिटरिंग सिस्टम को देख रही होती है। बाकी प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में तो बाकायदा इनके यहाँ एक कोर्ट है, और वो कोर्ट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और वो काम भी कर रही है। अब इतना तो क्लियर हो गया कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स हैं, जितनी भी हैं, उनमें से सबसे मजबूत अगर कोई कोर्ट है तो वो यूरोप की कोर्ट है, यूरोपियन कोर्ट है। उसकी एवरी डे इट ऑलमोस्ट प्रोनाउंसेस ऑन एन एवरेज 3 to 6 जजमेंट्स, और बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज्म है, और बाइंडिंग है, वो बाइंडिंग जजमेंट्स हैं, नॉट अनलाइक द एडवाइजरी ओपिनियंस ऑफ ICJ और अदर कोर्ट्स इंटरनेशनली। सो ये पहली कोर्ट है जो सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को डिसरिगार्ड नहीं करता है, लेकिन it gives primacy to the concept of human rights, unrestricted and unrestrained by the realities of social national borders and national frontiers. So across the national frontiers, or cross-cutting the reality of national borders, पूरे यूरोप में एक मैकेनिज्म इनकॉर्पोरेट करता है जिसमें कोर्ट्स इंडिविजुअल इंस्टेंसेस या मेंबर स्टेट भी पार्टीज बन सकती हैं, बट इंडिविजुअल्स भी अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, अगर डोमेस्टिक रेमेडीज एग्जॉस्ट नहीं की हैं, तो जिसे कहते हैं हम नॉन एग्जॉशन ऑफ डोमेस्टिक रेमेडीज, उस ग्राउंड पे रिजेक्ट हो जाती है वो एप्लीकेशन, उसे एप्लीकेशन कहते हैं, और अमेरिकन सिस्टम में उसे petition कहते हैं। Now we'll switch our discussion to the American Convention of Human Rights, and this is also a convention। बस अफ्रीका का है जिसे चार्टर कहते हैं, और अरब वाला भी चार्टर है, although that's not a part of your curriculum। American Convention on Human Rights, often the term American makes it bit misleading, because जब हम अमेरिकन कहते हैं हमें ये लगता है शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट एक चीज़ जहन में पहले से बिठानी चाहिए, व्हेन वी से अमेरिकन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वी मीन एनी स्टेट, अमेरिकन स्टेट एक्सेप्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ये अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1969 का है, रादर ये एक क्रोनोलॉजी से समझना चाहिए। इसका एक प्रोटोकॉल है 1988 का जो मैंने बताया था, हाँ 88 का ही है, 88 का प्रोटोकॉल है। ये एक्चुअली क्या हुआ कि जब यहाँ यूरोपियन काउंसिल बना, काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में, तो इधर भी
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स की इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। और व्हेन वी से अमेरिकन स्टेट्स वी मीन अपार्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भी अमेरिकन स्टेट्स हैं जिसमें कैरेबियन स्टेट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल लुसियाना है, सेंट लूसिया है, जमाइका है, बारबाडोस है और मैक्सिको है। इसके अलावा भी कुछ और अमेरिकन नेशंस हैं जो कैरेबियन सी के आसपास रहती हैं, जिन्हें हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स ये 1948 में इस्टेब्लिश हो गया और यूएसए इसका पार्ट है, ऐसा नहीं है। एंड इसकी सीट लोकेटेड है वाशिंगटन डीसी में। सो इट हैज़ 35 मेंबर स्टेट्स जो कि अमेरिकाज कहलाते हैं, यानी अमेरिकन नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेरिटरी, अमेरिकाज। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद चूंकि पूरी दुनिया में एक कंपटीशन था, ऑर्गेनाइजेशंस पे एक प्रेशर था, टेसिड प्रेशर, कि ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म को किसी तरह लाया जाए, तो फिर उन्होंने कन्वेंशन भी लाया और रादर पहले कमीशन आया। यहाँ पे पहले कमीशन आया, फिर कन्वेंशन आया, फिर कोर्ट आया, अलग अलग तरीके से आया। सो फर्स्टली व्हाट वाज एस्टैब्लिश्ड वाज नोन एज इंटर अमेरिकन कमीशन। हम इसको 1 2 3 करके लिखेंगे बिकॉज ये क्रोनोलॉजी में डेट ऑफ ऑकरेंस के हिसाब से बनेंगे इस तरह। इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ये पहली बार जो है इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स बना और 10-10 साल के गैप से ये सारे बने। ये 1959 में बना। फिर ऑब्वियसली कन्वेंशन आया, नंबर 2 सीरीज पे अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स आया, जिसका हम समझ ही रहे हैं, एक्चुअली हमारा थीम ही, हम बस इसकी हिस्ट्री में जा रहे हैं, कन्वेंशन आया कैसे। अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स ये 1969 में आया, 69 में ये आया। एंड फिर इन्होंने कोड भी इस्टेब्लिश की। ऑल्दो जो अगर हम कन्वेंशन पढ़ेंगे इस प्रोविजन में जिक्र है, पहले से ही जिक्र है इन चीज़ों का। अमेरिकन कोड ऑन ह्यूमन राइट्स, अब ये उतना रोबस्ट तो नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 1969 में, ये 79 में आया। These are 3. Now we switch our discussion to the अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो 1969 में आया। कमीशन पहले इस्टेब्लिश किया गया था बट ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स और मैंडेट्स क्लियर नहीं था इसमें कि कमीशन किन ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड के अगेंस्ट काम करे। ऑल्दो इट वाज ट्राइंग टू वर्क और सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विद इन द अमेरिकाज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और फिर इसलिए ये प्रेशर एक था कि कन्वेंशन भी आना चाहिए, तो इन्होंने कन्वेंशन लाया 1969 में। और नाउ वी विल डिस्कस द कन्वेंशन इटसेल्फ। जो कन्वेंशन है उसे सैन जोस कोस्टा रिका, जो कि कैरेबियन सी के पास एक छोटा सा मुल्क है उनका, वहाँ पे पहली बार इसको लाया गया। सो यू शुड नॉट गेट मिसलीड, कभी कभार MCQ वगैरह में या इवन नेटवर्क के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि सैन जोस कोस्टा रिका पैक्टा कौन है। इट्स कॉल्ड एज, एक मिनट, पैक्टा सैन जोस कोस्टा रिका। जैसे अफ्रीकन वाले को बांजुल कहते हैं, बांजुल चार्टर, क्योंकि वो गैम्बिया बांजुल में पहली बार आया। तो दिस एंटर्ड इनटू फोर्स और वाज अडॉप्टेड एट सैन जोस कोस्टा रिका। भाई और अमेरिका इज नॉट अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन, नॉट टू द कोर्ट आल्सो। यूनाइटेड स्टेट्स, बाय अमेरिका आई मीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएस हैज नाइदर रेटिफाइड इट, साइन तो किया हुआ है, यस साइन किया हुआ है कन्वेंशन को, बट रेटिफाई कभी नहीं किया। और कनाडा भी नहीं पार्ट है इसका। कनाडा लेटली एक्सप्रेस्ड इट्स कंसेंट टू बिकम ए पार्टी टू इट, बट कनाडा भी इसका पार्ट नहीं है। और एक कंट्री और थी वेस्ट इंडीज नेशन में, जिन्हें हम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो कहते हैं। दे डिनाउंस्ड दिस, एक बार उसमें ट्रीटी में आए, रेटिफाई किया, बट लेटर दे डिनाउंस्ड इट ऑन द इशू ऑफ डेथ पेनल्टी, क्योंकि एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी का यहाँ प्रोटोकॉल आया था, तो उन्होंने वो छोड़ दिया। तो यूएसए तो इसका मेंबर है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है, जो पहली बार बना था 1948 में, यूएसए उसका मेंबर है, बट इट हैज़ नॉट
ratified the convention and nor does it subscribe itself to the court also, जो कि कोड बना है. इसका mechanism जो implementation of rights का है वो bit weaker than comparatively to the European system है और उतना phenomenal work नहीं किया हुआ है इसने. इसका system तो वही है, rapporteur system है जिन्हें हम special rapporteurs कहते हैं. राइट्स का जो, अगर राइट्स पे जाएंगे, राइट्स कंटेंट तो वही है जो हम पहले बता रहे थे, लेकिन यहाँ स्पेशल रेपोर्टियर्स हैं और रेपोर्टियर्स मॉनिटरिंग सिस्टम या इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम ऑफ दीज कन्वेंशन स्टैंडर्ड्स को रिपोर्ट करते रहते हैं. और अब चूंकि कोड भी आ गई है तो कोड के सामने इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, स्टेट पार्टीज भी आ सकते हैं और उनको पेटिशन कहते हैं. जैसे यूरोपियन सिस्टम में उनको एप्लीकेशन कहते हैं, यहाँ पेटिशन सिस्टम है. तो कोड जो कि अमेरिकन कोर्ट एस्टैब्लिश हुई 1979 में, एज लेट एज 1979. तो कोर्ट में अनलाइक यूरोपियन सिस्टम जो हर मेंबर स्टेट से एक जज जाता है, यहाँ वैसा नहीं है. देयर आर 7 जजेस. वहाँ 9 ईयर टर्म है, यहाँ 6 ईयर टर्म है. सॉरी, 7 जजेस, 6 ईयर टर्म. दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते, वो हर जगह तकरीबन होता ही है जुडिशियल सिस्टम में. सो दीज जजेस ऑब्वियसली डू नॉट रिप्रेजेंट द मेंबर स्टेट्स. लेकिन कोर्ट क्या करती है, इसके फंक्शंस मेजरली जो इसके हैं वो एडवाइजरी और एजुडिकेटरी नेचर के हैं. जो इनका मैंडेट है वो एडवाइजरी नेचर का है एंड एजुडिकेटरी. ऑल्दो दे डिक्लेयर इट बाइंडिंग, बट ऐसा कोई फिनोमिनल वर्क अब तक देखने में नहीं आया है. तो कन्वेंशन जो है, इट हैज़ रेफरेंस ऑफ दिस कमीशन एज वेल एंड कोर्ट एज वेल. आर्टिकल 79 में आप देखेंगे कमीशन का जिक्र है, अमेरिकन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. और आर्टिकल 80 या 81 में है कोर्ट का जिक्र. 81 में ही है वो शायद, अमेरिकन कोर्ट जो ह्यूमन राइट्स के लिए इस्टेब्लिश किया गया है उसका जिक्र है. तो इसमें यूएसए के अलावा जो नेशंस हैं, ये बार बार मैं कह रहा हूँ बिकॉज इससे कंफ्यूजन हो जाता है. इट्स अ मिसनोमर जो इसका नाम अमेरिकन है. इसमें इसका नाम होना चाहिए था नॉन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट द पार्टी टू आइदर ऑफ इट, नॉट द कन्वेंशन नॉट द कोर्ट. तो कोर्ट की जुरिसडिक्शन को यूएसए नहीं सब्सक्राइब करता है और कोर्ट जो स्टैंडर्ड्स है, कोर्ट के पास मैंडेट जो है वो कन्वेंशन स्टैंडर्ड्स का है. Now we move to the last part of this discussion, that is African or Africa Banjul Declaration of Human Rights or Charter. रीजनल बेस में सबसे यूनिक अफ्रीकन है इन मैनी वेज. ये यूनिक है इन द एस्पेक्ट ऑफ, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स के नेचर या ह्यूमन राइट्स के अलावा ड्यूटीज़ का भी जिक्र है. अफ्रीकन चार्टर ऑन, पूरा नाम तो इसका एक्चुअली है अफ्रीकन चार्टर, और पूरा नाम ही लिख लेते हैं, अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स. अब उसकी फिलोसफिकल कुछ रीजंस हैं कि पीपल्स क्यों अडॉप्ट किया एज अ टर्म, बट अगर हम उसमें जाएंगे तो एकेडमिक डिस्कशन रह जाएगा. बट पीपल्स को वर्ड यूज करने का देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दिस, क्योंकि अफ्रीकन नेशन सिंस वहाँ अपार्थीड एक सोशल रियलिटी थी और कुछ और स्पेसिफिक कल्चरल और अफ्रीकन वैल्यूज़ वो शेयर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स अफ्रीकन नेशंस में मेंटेन किए रखने के लिए दिस अफ्रीकन चार्टर और ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1981. दिस इज़ द लेटेस्ट, और ये उन सबसे छोटा है तीनों कन्वेंशंस में से. यूरोप का 1950 में आया और अमेरिकन जो है 1969 में ऑब्वियसली आया कन्वेंशन, और अफ्रीकन 1981 में आया. और इसके प्रोटोकॉल्स भी हैं. फॉर एग्जांपल 2 प्रोटोकॉल्स बड़े अहम हैं इसमें चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में. जब चाइल्ड राइट्स CRC आया 1990 में इधर, तो इन्होंने भी चिल्ड्रन राइट्स को लेकर के 1990 में अपना प्रोटोकॉल इसमें ऐड किया. एंड स्पेशल प्रोटोकॉल विद रिस्पेक्ट टू विमेन एक और है, विमेन प्रोटोकॉल ऑफ 2003 है. ये बांजुल एक जगह है गैम्बिया में, अफ्रीकन नेशंस में. दैट इज़ वाई इसको बांजुल उस नाम से भी जाना जाता है, बांजुल डिक्लेरेशन. समटाइम्स दिस इज आस्क्ड एज MCQ इन एग्जामिनेशन. तो ख़ास बात तो इसमें राइट्स के मामले में कुछ नहीं है, बिकॉज राइट्स तो जो चैप्टर 1 है ना,
इट स्टार्ट्स विद द डिस्कशन ऑफ राइट्स, प्रियम्बल है, फिर चैप्टर 1 है जिसमें आर्टिकल्स 1 से लेकर के 26 तक राइट्स की बात हो रही है। स्पेसिफिक राइट्स हैं, कुछ वर्नैक्युलर और लोकलाइज्ड राइट्स भी हैं जो अफ्रीकन नेशंस में हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन है और रेशिज्म से प्रोटेक्शन है, बिकॉज अफ्रीका में एक सोशल रियलिटी थी ये। बट चैप्टर 2 इसका बड़ा यूनिक है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स में मिलते नहीं है। एंड दिस इज इट्स अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस कन्वेंशन और चार्टर। इसके लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है दैट ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स में ड्यूटीज़ नहीं हो सकते, बिकॉज ड्यूटीज़ इन अ वे दे मेक द फैसिलिटेशन और implementation of rights conditional or correlate them with duties, but unique तो है ये, because rights cannot be envisaged or guaranteed or protected without the approach of duties. duty based approach जब तक नहीं होगा तो rights implement ही नहीं हो सकते। so chapter second जो है इसका आर्टिकल 27 से लेकर के 30 तक ये शायद 27, 28, 29 तक ही है। 3 ही आर्टिकल है इस पे जो ड्यूटीज के लेकर के बात करते हैं। ये स्पेसिफिक है और ये किसी ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म में नहीं है। 2006 में इसमें कोर्ट भी एक एस्टैब्लिश हो गई है, चूंकि वो न्यू कोर्ट है तो अफ्रीकन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स ये 2006 में आया। और क्योंकि इसका काम अभी नया है, सो इन ए वे इसका काम जो है, जो पहले से कमीशन था, क्योंकि अफ्रीकन चार्टर का काम अभी तक कमीशन देखता था, जिसे हम अफ्रीकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स कहते थे, तो इट इन ए वे कॉम्प्लीमेंटेड द वर्किंग ऑफ द कमीशन। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड कंसिस्टिंग ऑफ 11 जजेस, और जो कि ऑल्टरनेटिवली एक टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और इसमें एक टर्म जो है बहुत एसोसिएट की जाती है, क्योंकि विमेन राइट्स को लेकर के मपूटो प्रोटोकॉल आया इनका, जिसे हम मपूटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, मपूटो प्रोटोकॉल विद रिस्पेक्ट टू विमेन राइट्स, जिसमें क्योंकि फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन एक रियलिटी थी अफ्रीकन नेशंस में, और उसको डिस्क्रिमिनेट स्टम्प आउट करने के लिए दिस प्रोटोकॉल वाज ब्रॉट। सो वी कैन से दैट African Charter और Banjul Declaration is quite contemporaneous or newer than the other ones। और फिर इसका मैकेनिज्म जो है थ्रू कोर्ट, क्योंकि बहुत लेट आया, 2006 में आया ये, सो इट्स इन इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्योंकि ह्यूमन राइट्स तो वैसे भी जो ह्यूमन राइट्स में रेवोल्यूशनरी स्टेज तक या फिनोमिनल चेंजेस के स्टेज तक तो आते आते 20-30 साल लग जाते हैं, और चूंकि ये नया है बहुत, हार्डली इसने 10-12 साल देखे अभी, सो इस पे ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज़ येट इन इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज। बट जो वर्किंग है इसकी वो उसी तरह है जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में होता है, जैसे रेपुटियर सिस्टम है या स्पेशल मैकेनिज्म्स हैं, वैसे ही ये करता है। रेपुटियर्स मॉनिटर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चार्टर स्टैंडर्ड्स, और इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग ऑल्सो होती है। अब चूँकि इफ़ देयर आर एलिगेशंस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी provision or rights of the charter, so they report it, or they can even approach the court also, क्योंकि कोर्ट लेटली एस्टैब्लिश हो गई है। एंड प्रोटोकॉल जो है इनके डेथ पेनल्टी को लेकर के, विमेन राइट्स और चिल्ड्रन राइट्स को लेकर के भी है। और जो कोर्ट है इसकी, कोर्ट हैज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, एंड ट्रांसनेशनली जितने भी सिग्नेटरीज या मेंबर स्टेट्स हैं वो उन पे एक्सरसाइज करने की। इट्स मैंडेट तो इसका अभी वीक है बहुत, बाइंडिंग जजमेंट्स हैं क्या है, इट्स येट टू बी सीन कि किस कोर्ट का क्या रिलेशन रहेगा कमीशन से। बट चार्टर या कन्वेंशन जिसे हम कहेंगे अफ्रीकन चार्टर, इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल टाइप्स ऑफ राइट्स। फॉर एग्जांपल in rights, in addition to rights there are duties also, तो civil and political rights भी हैं, और economic, social and cultural rights भी हैं। और जो people's नाम है इसका, तो इसीलिए people's rights जो मैंने बताया था आपको, उसकी ज़्यादा डिस्कशन में जाएंगे, बट people's नाम में जो people's rights है, it is actually a term which brings within its sweep and ambit the third generation rights। तो पीपल्स, क्योंकि अफ्रीका में एनवायरनमेंट इज़ अ सोशल रियलिटी और बहुत बड़ी रियलिटी है, देयर रिलेशनशिप विद नेचर एंड एनवायरनमेंट इज़ क्वाइट प्रॉक्सिमेट एंड यूनिक,
and many of the tribes there are indigenous people और जिनकी बहुत बड़ी population है and many areas में वो minority में नहीं है. They are quite proximate with the nature, and their association with those environment and environmental factors is very unique and peculiar in that scenario. तो इसीलिए जो group rights है, most instruments आपको silent मिलेंगे third generation rights को लेकर. तो इसमें third generation rights का भी एक incorporation है. For example इसमें article 17 है, article 21 है, article 22 है जो environmental rights वगैरह को secure करता है. और in addition to that जैसा हमने बताया कि ड्यूटीज़ के प्रोविजंस हैं वो भी बड़े यूनिक हैं इसमें. फॉर एग्जांपल इतना ही नहीं है कि ड्यूटी टुवर्ड्स द सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट, बेस्ट इंटेलेक्चुअल सर्विसेज रेंडर करने का ये भी एक ड्यूटी है कि इंटेलेक्चुअल सर्विसेज रेंडर करेंगे टुवर्ड्स द अफ्रीकन यूनिटी, कंट्रीब्यूट करेंगे. और इसी तरह ड्यूटी टू पे टैक्सेस एट्सेट्रा एंड promotion of moral well-being or upliftment, ये भी एक duty है. So it's a very unique charter in that scenario. That concludes the discussion of regional mechanism or regional treaties. इसलिए treaties लिखा था because treaties या convention के nature के हैं ये regional, जिनमें most prominent or pioneering is obviously the European system, closely followed by the other systems. But pragmatically European is far ahead because it has a kind of binding jurisdiction, and the implementation of the judgments of the European court is much more realistic than the other ones, क्योंकि उसमें जो group or committee of ministers है, it supervises the execution of judgments और वो बहुत important है, and it is actually an organ of this Council of Europe, this committee of ministers. एक committee of ministers है वो तो चूंकि उनका काम फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो जजमेंट्स का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, बट कमेटी जो सोशल राइट्स को देखती है उसको कंफ्यूज नहीं होना है, वो यूरोपियन सोशल चार्टर के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई है. बट जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे अंडर यूरोपियन अरेंजमेंट्स तो मोर स्पेसिफिकली हम सोशल चार्टर के अलावा देखते हैं. दो कोर्ट हैज लेटली स्टार्टेड टू गिव दोज राइट्स एज वेल in the recent judgments, but अभी तक जो हिस्ट्री है कोर्ट की वो ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन राइट्स को लेकर के बहुत रोबस्ट और डायनामिक रहा है. That is all in this lecture. Thank you for your patience. We'll continue in the next lecture.